Hello friends, once again welcome to you all in my YouTube channels. In this class we discuss about the branches of the abdominal aorta. Okay, so is it a new aorta or it is a continue of part of the supply part of the जो heart supply करता है via the systematic aorta? Is it continue of that या फिर कोई एक नई aorta है ये? So all that questions okay we discuss here. So let's continue with that one by one. So that is nothing but here. So जो heart you know very well the heart has a four chamber, the right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, and you know very well that left ventricle pump their blood into the systematic aorta. Okay, so जो systematic aorta जो first जो systematic aorta जो पूरे ब्लड वेंट्रिकल जो रहती है पूरे बम को पूरे ब्लड को पंप करता है एंड दैट पंप किया हुआ ब्लड जो हर्ट करता है वो सिस्टमेटिक अवटा में आती है and the systematic aorta continue with that formation of ascending artery, that is also called as the ascending aorta. Okay, and after that ascending aorta the arc of aorta is formed. Okay, arc like H shape. Okay, जो arc like shape like structures बनता है and this arc of aorta से 3 branches निकलती है, that is called as the left common carotid artery, left subclavian artery and the brachiocephalic trunk, and itself the brachiocephalic trunk give their 2 branches that they are nothing but that right common carotid artery and the right subclavian artery. Okay, so that is arc of aorta is a continuation of the ascending artery and the that arc of aorta is a continue with the descending आर्टरी. ओके, तो पीछे के साइड बैक साइड में abdomen. ओके, abdomen हमारा अगर हम रेट्रोपेरिटोनियम्स की बात करेंगे तो बिहाइंड द एब्डोमेंस हो जाता है. इन दैट सेम वे वो थोरैक्स का जो बिहाइंड वाला पार्ट होता है. ओके, सो थ्रू दैट द आर्क ऑफ एओर्टा कंटिन्यू टू द डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, that is called as a descending artery. भी descending artery why we say that ascending है तो descending भी होना चाहिए because अगर left branches भी है तो right branches भी होनी चाहिए. Okay, so that is nothing but a descending artery and a descending artery enter into the thorax region, that is called as a descending thoracic aorta. Okay, they supply to the जो कि जो इन बिटवीन द जो अपना जो रिब्स रहता है उसके बीच में बहुत सारे मसल्स रहते हैं, दे आर कॉल्ड द इंटरकोस्टल मसल्स and that muscle is supplied with the help of the descending thoracic artery which is itself the continuation of this systematic aorta. Okay, तो descending thoracic artery के बाद हमारे यहाँ पे एक there is a aortic hiatus at the level of 11th thoracic vertebra. Okay, ये at the level of 11th thoracic vertebra वहाँ पे क्या होता है, एक hiatus रहता है, that is called as the aortic hiatus. In that after that hiatus the descending thoracic जो aorta रहता है वो after that जो hiatus रहता है अगर उसके नीचे से वो अगर descending thoracic जो aorta अगर पास होती है that we call as that is the abdominal aorta. and okay, तो that is nothing but the abdominal aorta की वहाँ से formation होती है. So in this manner the abdominal aorta की formation होती है which is nothing but you can say that the systematic aorta से abdominal aorta की formation हो रही है. abdominal aorta या aortic hiatus के नीचे से descending thoracic aorta का continuation part रहता है, that is nothing but the abdominal aorta. Okay, so let's see their diagram and the abdominal aorta कितनी size रहती है, they are nothing but the 11th thoracic vertebra से 3rd lumbar vertebra के बीच में वो रहता है and it gives so many branches to the abdominal content, abdominal viscera. Okay, so during I explained that division of the alimentary canal मैंने एक वीडियो बनाया था. in that video we discussed the foregut, midgut and the hindgut, that is a part of the जो abdominal viscera होते हैं जो उसके organs होते हैं जो उसके parts होते हैं उसको मैंने describe किया था in that 3 part, that is the midgut, hindgut and the foregut. there I explained the further explanation we discussed there. Okay, that is abdominal aorta के वहाँ पे 3 branches जो कि anterior branches रहती है, that are described there. Okay, so let's see that. so that is something but the abdominal aorta के मैंने अच्छे से डायग्राम बनाया है आपके लिए. so first branches उसकी anterior branches रहती है, that is called as celiac trunk. okay, उसके बाद जो यहाँ पे A लिखा हुआ that is called as superior mesentery artery and जहाँ पे B लिखा हुआ that is called as inferior mesentery artery. they are all the branches of the abdominal aorta and the celiac trunk it has so many also branches. ये शायद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने रखा रहेगा. they are the celiac trunk. okay,
सो दैट इज नथिंग बट सिलियक ट्रंक की बहुत सारे ब्रांचेस रहती है. दे आर नथिंग बट स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ईसोफेजियल ब्रांच, ईसोफेजियल आर्टरी. सो दैट सिलियक ट्रंक मैंने डिटेल में वहाँ पे 4 गेट में ड्यूरिंग वहाँ पे मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि सिलियक ट्रंक जो रहता है, सॉरी सिलियक ट्रंक के बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं. स्प्लेनिक आर्टरी इट इज द लार्जेस्ट वन, and splenic artery gives number of branches to the stomach, it gives to the pancreas, it gives to the okay, so that is nothing but the left gastroepiploic artery greater and lesser curvature of the stomach को supply करती है via the splenic artery. left gastric artery is also lesser curvature of the stomach को supply करती है via the left side, and the common hepatic artery in detail में हम बाद में कभी पढ़ेंगे. so common hepatic artery also supply the liver, pancreas and stomach. okay, so they are also they all are the common hepatic artery, and the common hepatic artery से ही हमें hepatic artery बनती है which supply to the liver. in that same manner the esophageal branch supply to the esophagus and the esophageal artery that is called, okay, they are nothing but the celiac trunk. so that is I want to told to you, okay, the celiac trunk is the branch of the abdominal aorta which supply to the whole abdominal viscera को कंटेंट के सप्लाई को सप्लाई करता है. ओके, दे आर नथिंग बट द celiac trunk. उसके बाद सुपीरियर मेजेंटरी आर्टरी, इन्फीरियर मेजेंटरी आर्टरी, ये मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है, यहाँ पे फर्दर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा उसको. सो इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो गो टू द डिवीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वीडियो, देयर यू कैन वहाँ पे वेल मैनर में आपको अंडरस्टैंड मैंने करके वहाँ पे बताया कि इसके जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेजेंटरी आर्टरी के बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं विच सप्लाई टू द रेक्टम, विच सप्लाई टू द यूरिनरी ब्लैडर. एंड वहाँ पे क्या करता है कि कोलोन को, रेक्टम को, सिग्मोइड कोलोन, असेंडिंग ट्रांसवर्स एंड ओके सो मेनी एंड मेनली इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट जो सुपीरियर मेजेंटरी आर्टरी होती है वो हमारे मिड गट को सप्लाई करती है, एंड जो इन्फीरियर मेजेंटरी आर्टरी होती है हमारे आयन गट के रीजन को सप्लाई करती है. ये सब क्या है मैंने डिवीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के वीडियो में आपको बताया था अच्छी तरीके से. सो दे आर ऑल द celiac trunk, superior mesentery artery and the inferior mesentery artery, the branches of the abdominal aorta. in that same manner, so यहाँ पे एक branches arise हो रहा है, these are the called as the abdominal aorta. okay, so जो abdominal aorta की जो first branches है that is called as the left superior suprarenal artery. सो फर्स्ट ब्रांचेस ऑफ celiac trunk को ही कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक फर्दर ब्रांचेस निकल जाती है. सो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे दैट इज दे आर द लेफ्ट सुपीरियर सुप्रारिनल आर्टरी. सो अगर लेफ्ट सुपीरियर सुप्रारिनल आर्टरी है तो यहाँ पे लेफ्ट इन्फीरियर सुप्रारिनल आर्टरी भी होगी. ओके, सो यहाँ पे एक ब्रांचेस निकली हुई है, ये भी एब्डोमिनल आर्टरी से निकली हुई है. इसके दो यहाँ पे बाइफरकेट हो जाते हैं. वन इज कॉल्ड एज द लेफ्ट इन्फीरियर सुप्रारिनल आर्टरी एंड वन इज कॉल्ड एज द लेफ्ट रीनल आर्टरी. इन दैट सेम मैनर इन द राइट साइड दे आर कॉल्ड एज द राइट inferior suprarenal artery and the right renal artery. in that same manner here is the right superior suprarenal artery. okay, they are all the branches of the abdominal aorta. right and left side the pair manners में वो supply करती हैं abdominal content को, abdominal viscera को, abdominal parts के. okay, जो भी उसके content रहते हैं. उसके बाद they are here is nothing but the long is a not this is nothing but the gonadal artery, that is a sex artery you can say that. तो गोनाडल आर्टरी में टेस्टिकुलर आर्टरी रहते हैं एंड ओवेरियन आर्टरी रहती है. सो दैट इज राइट टेस्टिकुलर राइट ओवेरियन आर्टरी एंड द लेफ्ट टेस्टिकुलर लेफ्ट ओवेरियन आर्टरी. ओके, सो यू नो दैट मैंने नेक्स्ट स्लाइड में वहाँ पे रखा है आपको किस तरीके से वहाँ पे मैंने लिख के बताया आपको. ओके, सो here is nothing but the abdominal aorta end with the bifurcation with the two end at the level of L4 vertebra it bifurcate, that is the fourth lumbar vertebra के लेवल पे it bifurcate into the two common iliac artery. they are called as the right and left common iliac artery. okay, this is nothing but the right and left common iliac artery. यहाँ पे मैंने by the way यहाँ पे मैंने उसकी ब्रेथ को कम कर दिया, लेकिन ब्रेथ वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं रहता है, they are all same. ओके, यहाँ पे एक फर्दर एक ब्रांचेस निकलती है, दे आर कॉल्ड द मीडियन सैक्रल आर्टरी. सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा, जो कि आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी ब्रांचेस रहती हैं जो कि बहुत सारे कंटेंट को, बहुत सारे चीज़ों को सप्लाई करती है. ओके, सो दे आर ऑल नथिंग बट द एब्डोमिनल विसरा को सप्लाई करने वाली मेन वेसल्स जो होती है एब्डोमिनल एओर्टा होती है, एंड द लार्जेस्ट वेसल्स सप्लाई टू द एब्डोमिनल विसरा दे आर कॉल्ड एज द एब्डोमिनल एओर्टा. ओके, सो दे आर ऑल अबाउट दैट. इन द नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको celiac trunk बताया था, celiac trunk मैंने आपको बता चुका. सो लेट्स वी सी दैट द एब्डोमिनल aorta. ओके, सो एब्डोमिनल aorta it bifurcate, it end with the two common iliac artery. they are called as the left common iliac artery and the right common iliac artery, and each common iliac artery further give their two branches in that same manner. okay, so
The left common iliac artery gives the external iliac artery and the internal iliac artery in such a manner that the external iliac artery called as the left external iliac artery and the left internal iliac artery. In that same manner here is the right external iliac artery and the राइट इंटरनल iliac artery. लेकिन हम यहाँ पे एक ही की बात करेंगे कि दोनों की ब्रांचेस सेम रहती है. ओके, सो द लेफ्ट कॉमन iliac artery के 2 ब्रांचेस है, एक्सटर्नल iliac artery एंड द इंटरनल iliac artery. यहाँ पे मैं लेफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे हमेशा नहीं लिखूंगा क्योंकि ये सभी में सेम होती है, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन हम राइट एंड लेफ्ट लिखते हैं, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस रहती है दे आर सेम ऑन द बोथ साइड. ओके, सो जो एक्सटर्नल iliac artery रहती है मैं कभी डिटेल में आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नल iliac artery वहाँ पे एक इंगुलर लिगामेंट होता है जो प्यूबिक ट्यूबरकल टू द एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन ऑफ द हिप बोन के वहाँ पे एक लिगामेंट वो रन करता है, एंड बिलो दैट लिगामेंट दैट एक्सटर्नल iliac artery कन्वर्ट टू द फीमोरल आर्टरी, एंड दैट फीमोरल आर्टरी व्हेन रीचेस टू द पॉपुलेटर फोसा देयर नेम गिवन चेंजेस टू द पॉपुलर आर्टरी, एंड दैट पॉपुलर आर्टरी हैज द 2 branches, give their 2 branches, they are nothing but the anterior and the posterior tibial artery. Anterior tibial artery continue with that the 2 main branches, they are called as a वहाँ पे मीडियल एंड द लेटरल प्लांटर आर्टरी बन जाता है, एंड द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी गिव देयर 1 more branches, they are called as the fibular artery, and the fibular artery and the medial and lateral plantar artery both together they form and they constitute one artery. Okay, so that continue with the dorsal pedis artery वहाँ पे बन जाती है, and they together they form continue with the vein. Okay, सो दैट इज नथिंग बट द एक्सटर्नल iliac artery की कंटिन्यू पार्ट रहती है. हमें यहाँ पे डिटेल में इंटरनल iliac artery पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए बताऊँगा क्योंकि जो इंटरनल iliac artery की जो ब्रांचेस रहती है मेन पेल्विक जो कंटेंट रहते हैं यूरिनरी ब्लैडर रेक्टम वगैरह वगैरह वो उसको सप्लाई करती हैं. इंटरनल iliac artery के 2 ब्रांचेस फर्दर रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल iliac एंटीरियर डिवीजन एंड द इंटरनल iliac पोस्टीरियर डिवीजन. सो इंटरनल iliac एंटीरियर डिवीजन एंड द पोस्टीरियर डिवीजन बाय द नेम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर के पीछे जो ब्रांचेस निकलती है दैट इज दे आर कॉल्ड एज द पोस्टीरियर डिवीजन. ओके, सो द इंटरनल iliac एंटीरियर डिवीजन होते हैं, इसके 3 मेन ब्रांचेस रहती हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अम्बिलिकल आर्टरी, ऑब्टुरेटर आर्टरी एंड द मिडल रेक्टल आर्टरी बाय द नेम सजेस्टिंग दैट द वेयर इट इज सप्लाइड. ओके, द अम्बिलिकल आर्टरी जो रहती है, umbilical artery is nothing but it attached with the umbilicals. Okay, and the one end attached with the umbilicals and the other end is attached with the urinary bladder. Okay, so umbilical artery जो supply रहती है it is a continue with the internal iliac artery की एक branches रहती है जो कि जब हम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो वहाँ पे जब हम स्टडी करेंगे सो वहाँ पे जो अम्बिलिकल आर्टरी रहती है ये किसी की ब्रांचेस नहीं निकलती है वहाँ पे. सो जो अम्बिलिकल आर्टरी रहती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इन ओम जो जब वो मदर्स के यूट्रस में रहता है सो उस दैट डेवलपमेंट में क्या रहता है मालूम है, अम्बिलिकल आर्टरी जो रहता है इंटरनल iliac की आर्टरी की ब्रांचेस रहती है, लेकिन वो आके डायरेक्टली अपना जो वेस्टेज पॉर रहता है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में वो पॉर नहीं करता है, इंस्टेड दे पॉरिंग इनटू द वहाँ पे अम्बिलिकल्स के पास आता है एंड दे ड्रेन इनटू द मदर्स वेन एंड वहाँ पे वेस्टेज का एक्सचेंज होके मदर्स के ब्लड्स में वो वेस्टेज चले जाता है एंड मदर एक्सक्रीट दैट वेस्टेज. ओके, बिकॉज आवर बॉडी नॉट कैपेबल इन दैट मैनर कि वो बॉडी को एक्सक्रीट को बाहर निकाल सके. सो जो एक्सटर्नल iliac की जो ब्रांचेस रहती है दैट इज अम्बिलिकल आर्टरी. इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब अर्ली डेवलपमेंट रहता है उसका जो एक्सटर्नल iliac आर्टरी जो अभी आफ्टर द जो बर्थ हो जाता है तो वो वो यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करता है. लेकिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो वहाँ पे क्या रहता है कि जो वो यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई ना करने के बजाय वो क्या करता है अम्बिलिकल के साथ अटैच हो जाता है, बिकॉज हमारा बॉडी हमारा यूरिनरी ब्लैडर उस समय डेवलप नहीं हुआ रहता है एंड द वेस्टेज ड्रेन इनटू द प्लेसेंटा इनटू द अम्बिलिकल्स वहाँ पे वो रहता है एंड अम्बिलिकल्स के थ्रू प्लेसेंटा में वो डायरेक्ट एक्सचेंज जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज द अम्बिलिकल आर्टरी विच सप्लाई आफ्टर द बर्थ इनटू द विच सप्लाई टू ब्लड टू द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, सो मैं यहाँ पे लिगामेंट्स की बात करूँगा तो अम्बिलिकल आर्टरी वहाँ पे फर्दर मैं बताऊँगा. अम्बिलिकल आर्टरी जो रहती है उसके फर्दर ढेर सारे ब्रांचेस रहते हैं, इन द नेक्स्ट स्लाइड में वो रखा हुआ है. उसके बाद सेकंड ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिवीजन दैट इज ऑब्टुरेटर आर्टरी एंड द मिडल रेक्टल आर्टरी. द नेम सजेस्टिंग द ऑब्टुरेटर फोरामेन के थ्रू वो पेल्विक रीजन्स के कंटेंट को सप्लाई करता है एंड द मिडल रेक्टल आर्टरी रेक्टम को ये सप्लाई करने वाला मिडल रेक्टल आर्टरी रहता है, दैट इज इंटरनल iliac के डिवीजन एंटीरियर डिवीजन के ब्रांचेस है. इंटरनल iliac के पोस्टीरियर डिवीजन के बहुत सारे ब्रांचेस है, दे आर नथिंग बट द इलियो लंबार आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी एंड द लेटरल सैक्रल आर्टरी. सो ये सभी जो ब्रांचेस हैं
अल्टीमेटली ये क्या करने वाले हैं, ये सभी पेल्विक कंटेंट से लीव आउट होके हमारे थाई रीजन को, हमारे जो बैक साइड पोस्टीरियर थाई को, एंटीरियर थाई को, उसके बाद मिडल थाई को, ये अलग अलग रीजन्स के थाई को सप्लाई करने वाली रहती है। एंड दे लीव द पेल्विक रीजन वाया द ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। तो ग्रेटर सियाटिक नॉच आप पढ़ेंगे, हिप बोन का एक कंटेंट है। ग्रेटर सियाटिक नॉच इज कन्वर्टेड टू द ग्रेटर सियाटिक फोरामेन बाय द, वहाँ पे एक लिगामेंट अटैच हो जाता है एंड दैट नॉच इज कन्वर्टेड इन द फोरामेन एंड दैट वाया दैट फोरामेन दैट दीज थ्री आर्टरी, दैट इज द पोस्टीरियर डिवीजन की जो आर्टरीज होती है, दे लीव आउट the pelvic region and they supply the anterior thigh, posterior thigh and the middle thigh muscles. Okay, so that is they all about that. Next slide चलो चलते हैं। उसके बाद umbilical artery हमारे फर्दर डिटेल में दिया गया। ओके, सो दैट इज नथिंग मतलब अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी के यहाँ पे मैंने ब्रांचेस बताया कि सुपीरियर वेसिकल आर्टरी रहते हैं, इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी रहते हैं एंड द यूटेराइन एंड वजाइनल आर्टरी रहते हैं। जो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी रहते हैं, ये वेसिकल मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, तो सुपीरियर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करने वाली जो ब्रांच रहती है बाय द अम्बिलिकल आर्टरी, ये सप्लाई करने वाली रहती है। एंड द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी supply to the upper part of the urinary bladder. Inferior vesical artery supply to the inferior part of the urinary bladder and the uterine और vaginal artery. So that is जो हमारा यूटरस जो भी रहता है एंड वजाना जो भी रहता है वो उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी रहती है। देयर इज अम्बिलिकल आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस रहती हैं। उसके बाद पोस्टीरियर डिवीजन मैंने बताया कि ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन है, देयर इज नथिंग बट द पोस्टीरियर एंड द एंटीरियर डिवीजन। लेट्स कंटिन्यू विद द लिगामेंट्स रिलेटेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। सो जो मैंने बताया यहाँ पे जो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, यहाँ पे फर्स्ट लिगामेंट होता है। सो आप जब यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा जो उसका नेक होता है, नेक का जो कंटेंट होता है वो कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ द यूरेकस एंड दैट यूरेकस इज कनेक्टेड टू द अम्बिलिकस। ओके, दैट यूरेकस इज कनेक्ट विद द अम्बिलिकस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अगेन वहाँ पे क्या रहता है कि जैसे कि जो अम्बिलिकल आर्टरी रहता है वो अपना वहाँ पे वेस्टेज पॉर कर देता है। ओके, इन दैट सेम मैनर यहाँ पे जो अम्बिलिकस रहता है, यहाँ पे जो यूरेकस रहता है, इट ऑल्सो ड्रेन द वेस्टेज इनटू द अम्बिलिकस। सो जो नेक का कंटेंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कनेक्टेड विद द अम्बिलिकस। ओके, सो दैट यूरेकस after the birth, that uricus is remain and that remain is converted to the ligament that is called as the medial umbilical ligament. Uricus which connect with the umbilicus and the apex of bladder and that changes to the median umbilical ligament. Let's continue with the medial umbilical ligament. तो जो मैंने umbilical artery बताया था जो कि also attach with the umbilicus के साथ attach रहता है। So the part of internal iliac anterior division, the distal portion of this umbilical artery convert to the into that ligament that is called as a medial umbilical ligament. जो median umbilical ligament होता है इसकी एक खास चीज़ होती है, that is they are called as ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द यूरिन ब्लैडर। अगर आप बहुत समय तक वहाँ पे स्टोर करके यूरिन अगर यूरिन ब्लैडर में रखे हुए हैं इन दैट, तो आपको एब्डोमेंस में कुछ फील होता है, वहाँ पे फुल फिल जो हमारा जो एब्डोमेन रहता है भरा हुआ फील होता है। दैट्स वाई दैट ड्यू टू द यूराकस, क्योंकि लिगामेंट होता है एंड दैट लिगामेंट वाई दैट लिगामेंट द यूरिन कम इन द एब्डोमेन रीजन। ओके, वो अपवर्ड मूवमेंट्स में उसकी फॉरवर्ड्स मूवमेंट होती रहती है ड्यू टू द यूरेकस एंड दैट यूरेकस इज अ फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट आफ्टर द बर्थ वो फॉर्म हो जाती है। तो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट मैंने आपको बताया कि जो अम्बिलिकल आर्टरी रहती है जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करने वाली थी, उसका अदर एंड अटैच विद द अम्बिलिकस। लेकिन जो उसका जो एक एंड इंटरनल इलियक आर्टरी के साथ अटैच है और दूसरा एंड जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच है, लेकिन जो उसका लास्ट वाला जो एंड है पार्ट है दैट इज कन्वर्ट टू द लिगामेंट दैट इज देयर कॉल्ड एज अ मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके, तो दैट इज नथिंग बट द मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी। उसके बाद लेटरल लिगामेंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है। सो एक फर्दर ये भी आर्टरी रहती है लेकिन ये अम्बिलिकस के साथ अटैच नहीं हुआ रहता है, ये पेरिटोनियम के साथ अटैच हुआ रहता है। सो दे आर नॉट हेल्पिंग इन द एनी काइंड ऑफ बट दे सप्लाई टू द जो लेटरल लिगामेंट होता है जो वो दोनों साइड से लेटरली क्या करता है, वो लिगामेंट यूरिनरी ब्लैडर को होल्ड करके रखता है एंड दैट नॉट अटैच विद द बिकॉज इट नॉट हेल्प इन द एक्सीटिन। ओके, वो वेस्ट को रिमूव करने के लिए हेल्प नहीं करता है, दैट्स वाई दे कनेक्ट विद द यूरिनरी ब्लैडर एंड द पेरिटोनियम के साथ अटैच हुआ रहता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर को होल्ड करने के लिए हेल्प करता है। So that is all about that today's lectures. We discuss here the abdominal aorta, their branches
and the ligament related to the urine bladder. Okay, thanks for watching the video. Have a nice day.